آئے ہے، نصیحت مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے، اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے۔ دور حاضر کچھ ایسا ہی دور ہے۔ گزشتہ مسلسل شاید 3 یا 4 جمعہ سے فقہی مسائل پر گفتگو ہو رہی تھی، تو بہت سارے بھائیوں کو گرا بھی گزر رہا ہے، اب بہت سارے بھائیوں کو اچھا بھی لگ رہا ہے۔ اب برا اس کو لگ رہا ہے جس کی داڑھی میں، وہ مثال میں نے دی تھی نا، چور کی داڑھی میں تنکا، برا تو اسی کو لگے گا جو برائی کرے گا، اور اچھا اس کو لگے گا جو برائی سے بچنا چاہتا ہے نا۔ دین سیکھنا ضروری ہے، فرض ہے، کم سے کم اتنا کہ جو چیزیں ہم پر اسلام میں فرض ہیں، ضروری ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کے مسائل تو ہم کو آ جائیں، کم سے کم اتنا دین سیکھنا فرض ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے کیا حلال کیا ہے اور کیا حرام کیا ہے، اس کے نبی نے ہمیں کیا کیا حکم دیے ہیں، کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے اور کن چیزوں کو کرنا ہے، اس کی تمیز ہم کو تبھی تو آئے گی جب ہم دین سیکھیں گے۔ جب دین سیکھیں گے تبھی تو ہمیں تمیز آئے گی، ورنہ تو ہم اس طرح اندھیرے میں زندگی گزاریں گے جس طرح آج سے 10 یا 20 سال پہلے یا 25 یا 30 سال پہلے، آپ میں بہت سارے لوگ عمر دراز ہیں، وہ دور آپ نے دیکھا کہ جس دور میں آپ کھانا کھاتے تھے تو سبزی کے رنگ نہیں بتا سکتے تھے کہ کون سے رنگ کی سبزی اور کون سی ہے، ذائقے سے پتا چلتا تھا کون سی سبزی کھا رہے ہیں، کیونکہ اندھیرا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ لوگ چھوٹی سی ڈبی گھاسلیٹ کے تیل سے جلا لیا کرتے تھے، اور پھر اس سے اتنی روشنی بھی نہیں ہوتی تھی کہ سب روشن ہو جائے، وہ اپنے ارد گرد بس تھوڑی سی روشنی کرتی تھی جس سے بس دل کو تسلی رہتی تھی کہ ہاں روشنی ہو رہی ہے۔ تو اس جیسی زندگی گزاری بہت سارے لوگوں نے، لیکن جب لائٹ کا زمانہ ترقی پکڑا تو اب جب روشنی میں آ گئے تو ہر چیز کی تحقیق کر رہے ہیں، جب روشنی میں آ گئے تو ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو پھر علم دین کا سیکھنا بھی ہم پر ضروری ہے کہ جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے ہم کو بھی تو ترقی کرنی ہے۔ ہمارے باپ دادا جہالت میں زندگی گزار کر چلے گئے، ہم کو جاہل بن کر زندگی نہیں گزارنی ہے، ہم کو دین کی معلومات حاصل کرنی ہے تاکہ ہماری نمازیں، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہمارا زکوٰۃ درست ہو جائے، ہم صحیح سے اس کو ادا کر سکیں۔ 10-20 سال پہلے چلے جاؤ گاؤں میں، نماز پڑھنے والے دور کی بات، پورے گاؤں میں مسجد ہوتی تو امام بھی نہیں ہوتا تھا، وہ دور بھی تھا۔ لیکن آج جب زمانے نے ترقی کی تو ہر گاؤں میں جہاں جہاں مسجدیں ہیں، نمازیوں کی تعداد بھی ماشاءاللہ خوب ہے، اور ہر جگہ نماز پڑھانے والے 1-2 نہیں، 2-4 نہیں، 10-20 لوگ بھی ہر گاؤں میں موجود ہیں۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم علم دین سیکھتے رہیں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے بہت ساری چیزیں آپ کو بتائیں جو غلط فہمیاں تھیں، آج آپ کو ایک واقعہ مختصر سے سناتا ہوں، توجہ قریب کریں۔ ایک شخص تھا، ایک شخص جو مزدوری کرتا تھا، اور مزدوری کرنے کے بعد جو پیسے کما کر لاتا، دیکھو میں نے بارہا کہا ہے کہ میری بات کو کوئی پرسنل نہ لے، لیکن جو ایسا کر رہا ہے وہ سمجھ جائے کہ میرے اوپر ہی یہ بات کہی جا رہی ہے، اور اس کو اپنے اندر سدھار پیدا کرنے کی ضرورت ہے نا۔ وہ روزانہ مزدوری کر کے لاتا، اس میں سے کچھ خرچ نکال لیتا اور باقی پیسے کو ایک گڑھے کے اندر، ایک مٹکے کے اندر ڈال دیتا۔
धीरे धीरे उसने तरक्की की, मजदूरी से वो ठेकेदार बन गया, और फिर ठेकेदार बनने के बाद और ज्यादा पैसे उसमें डालने लगा। खर्चा नहीं बढ़ाया बच्चों का, खर्चे में तंगी रखी, बखील बना रहा, लेकिन पैसा जोड़ने में लगा रहा। और वक्त गुजरा, वो ठेकेदार से किसी फैक्ट्री का मालिक बन गया, अल्लाह ने करम फरमाया। लेकिन फिर भी उसने ऐसा ही किया कि बच्चों के जो अखराजात थे उसमें तंगी करता रहा और माल को और जोड़ता रहा, यहां तक कि उसने 10-20 साल में कई मटके भर दिए, कई बर्तन भर दिए। तवज्जो है ना आप हजरात की? कई बर्तन भर दिए। और फिर जब जो मटका भर जाता, जो उसकी गोलक भर जाती, उसको जमीन में दबा देता और सोचता कि ये मेरे बुढ़ापे में काम आएगा, खूब काम आएगा, मुझे तंगदस्ती का सामना नहीं करना पड़े। कमाता रहा, भरता रहा, कमाता रहा, भरता रहा। एक दिन आया कि अचानक उसकी तबीयत खराब हुई। वो पहुंचा डॉक्टरों, हबीबों, तबीबों के पास, हकीमों के पास, कहने लगा देखें क्या बीमारी है। डॉक्टरों ने कहा आपको ऐसी बीमारी लग गई है कि आप ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं, आप ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं, जब तक बगैर खाए पिए जी सकते हैं तब तक जी सकते हैं। अब पछताने लगा, वो जो मटके मैंने भरे हैं क्या काम आएंगे, ना मैं उनसे खाने की चीज खरीद सकता, ना पीने की चीज खरीद सकता, और पूरी जिंदगी अपने बच्चों पर तंगी करता रहा। अपने बच्चों को बुलाया और कहने लगा देखो मकान के फला कमरे में मैंने इतने मटके दबाए हैं और इतना माल है, सोना चांदी नोट सब चीज है। बच्चों ने इतना सुना, अरे वाह मजे आ गए, खोद डाला पूरा घर, निकाल लिए सारे मटके। एक गया मोटरसाइकिल लेकर आया, एक गया कार लेकर के आया, एक गया अपने मकान के खरीदने का इंतजाम कर लिया। अब ये पड़ा पड़ा पछता रहा था, मैंने अपना पेट काटा, तन पे पहना भी नहीं, सही से खाया भी नहीं, मटके जमा किए, इन्होंने एक दिन में खर्च कर डाला, एक दिन में बर्बाद कर डाला। सोचने लगा काश जब खर्च करने का वक्त था तब खर्च कर लिया होता। 10-20 साल का जमा किया हुआ 10-20 मिनट में औलाद ने उड़ा दिया, 10-20 मिनट में औलाद ने उड़ा दिया। मैं आपको इस तरफ लेकर के आ रहा हूं कि बहुत सारे भाई मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने बच्चों का तन पेट काट लो। जरूरत की चीजें उन पर खर्च किया करो। इतने बखील, इतने कंजूस ना बन जाओ कि दौलत रखी रह जाए और तुम पछताते रहो उस इंसान की तरह जिसने मटके भर लिए थे। जब खाने की जरूरत हो तो खाने पर खर्च किया करो, जब पहनने की जरूरत हो तो पहनने पर भी खर्च किया करो, जब मकान की जरूरत हो तो मकान पर भी खर्च किया करो। अल्लाह ने तुम्हें बेहतरीन नेमतें अता फरमाई हैं, ये हाथ पैर, ये मुंह, ये पेट, ये टांगे, ये आंखें, ये काने, अल्लाह ने तुम्हें मुफ्त में अता फरमाई है और इनका ख्याल रखने की जिम्मेदारी तुमको सौंपी है। बहुत सारे भाइयों के पास दौलत के अंबार है लेकिन कपड़े अच्छे नहीं, लोग कहते हैं कैसे भीख मंगों की तरह गुजर रहा है, घर अच्छा नहीं, खाना पीना अच्छा नहीं। मैं कहता हूं फजूल खर्ची मत करो, लेकिन जरूरत की चीजों पे खर्च किया करो। बहुत सारे भाइयों का हाल ऐसा है कि दूसरी की बेटी को ब्याह कर अपने घर ले आए, शादी करके निकाह करके अपने घर ले आए और साल में 1 या 2 जोड़ा बड़ी मुश्किल से देते हैं। देखो जब तुमने निकाह किया था, किसी की बेटी को कबूल किया था, तो साथ में ये कहा था निकाह पढ़ाने वाले काजी ने, क्या तुमने मां नानो नफका के कबूल किया? गौर नहीं करते हो तुम। जब तुमसे लड़की कबूल कराई थी निकाह में तो ये कहा था क्या तुमने मां नानो नफका के कबूल किया? ये नानो नफका क्या
अखराजात है, उसमें कपड़ा भी है, खाना पीना भी है, रिहाइश भी है, जेब खर्ची भी है। तुमने कबूल तो कर लिया, मैं नानो नफका की ओर दे नहीं रहे हो। याद रखो, किसी के घर से किसी की बेटी को ब्याह कर अपने घर लाए हो, और अगर वो तुम्हारे इस जुल्म की वजह से तंगदस्ती में जिंदगी गुजार रही है तो कल कयामत के दिन तुम्हारी पकड़ होगी। पकड़ होगी, ऐसा नहीं कि तुम जो कर रहे हो वही सही है। नहीं, अल्लाह हिसाब लेगा कि जिसको तुम अपने घर लाए थे निकाह करके, क्या उसकी जिंदगी में आराम था, क्या उसकी जिंदगी में सुकून था, इत्मीनान था। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज का हिसाब लेगा। ये ना समझ लेना कि हम जो कर रहे हैं हम ही होशियार हैं। नहीं, ऐसे काम करो कि जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें बताए। अब एक ऐसे शख्स के बारे में आपको बताता हूं, समझ आ रही है ना आपको बात? एक ऐसे शख्स के बारे में बताता हूं कि जो मजदूरी और दिहाड़ी करता है, कमा कर लाया 500 रुपए। कितने? 500 रुपए कमा कर लाया। 500 कमाने के बाद में बड़ी मेहनत की, गली गली दौड़ा, फैक्ट्री फैक्ट्री भागा, सर का पसीना एड़ी तक पहुंच गया, कपड़ों से बदबू आने लगी। मेहनत मजदूरी में जो काम किया था, पसीना बहा था, उसकी वजह से न उसने अपनी तबीयत को देखा, न अपने जिस्म को देखा, न अपने लिबास को देखा। गली गली दौड़ा, चाहे वो फैक्ट्री में काम किया, चाहे वो फेरी लगाने वाला, चाहे वो फल बेचने वाला, चाहे वो मजदूरी करने वाला। शाम को 500 रुपए कमा कर लाया, और लाने के बाद में उसने क्या किया? वो जो पैसा हलाल का कमा कर लाया था, मेहनत और मजदूरी से कमा कर लाया था, खून पसीना बहाकर कमा कर लाया था, रक्षा चलाकर कमा कर लाया था, उस नाहंजार ने किया क्या कि शाम को आकर वो जो पैसा लाया था उसमें उसके बच्चों का हक था कि नहीं था? उसकी बीबी का हक था, बच्चों को खाना खिलाने का इंतजाम उसी में से होना था, रिहाइश का इंतजाम उसी में से होना था, कपड़े का इंतजाम उसी में से होना था। लेकिन इस नालायक ने क्या किया कि उन बच्चों के हक को मारा और उस पैसे को जुए में लगा दिया। उस पैसे को जुए में लगा दिया। लोग कैसा कैसा जुआ खेल रहे हैं, लोग ये समझते हमको मालूम नहीं। हम ना खेलते हैं तो क्या हुआ, लोग हमको बताते तो है। अभी दौर चला है, ऐसा दौर चला है कि लोग ताश के जरिए तो नहीं, अड्डे पर बैठकर तो नहीं, लेकिन बिस्तर में लेटे लेटे जुआ खेल रहे। कोई मोबाइल में हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है। सच तो सच है, आकर रहेगा सामने। आज नहीं आएगा तो कब्र में आएगा, कब्र में आएगा, सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। कोई किसी तरह लूडो के जरिए पैसे लगा रहे हैं, क्रिकेट के जरिए पैसे लगा रहे हैं, टेनिस के जरिए पैसे लगा रहे हैं। मुझे बताओ तो सही, वो पैसा जो तुम कमा कर लाए, तुम्हारे बीवी बच्चों का उसमें हक था, उस हक को भी मार लिया और खून पसीने की कमाई को तुमने जुए में लगा दिया। सुनो, मैं तुमको बताता हूं कुरान और हदीस की रोशनी में जुआ क्या है। तुम हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हो, जिस दिन तुम्हारा हेलीकॉप्टर उड़ेगा ना, ये हेलीकॉप्टर धरे रह जाएंगे। जिस दिन तुम्हारा हेलीकॉप्टर इन चार कांधों पे जाएगा ना, लोग कहेंगे बड़ा हेलीकॉप्टर उड़ाता था, आज देखो हेलीकॉप्टर बन गया। बनेंगे कि नहीं बनेंगे हेलीकॉप्टर? ये हेलीकॉप्टर तुमको कब्र में बचा लेगा। कोई है जो दावा कर दे मैं नहीं मरूंगा? अरे तुम मेहनत मजदूरी कमा कर लाओ और फिर हराम में लगा दो अपनी कमाई को, शर्म नहीं आती? अपने काम धंधे के अड्डों पर तुम जुआ खेलते हो, अपने बीवी बच्चों का पेट काट कर, उनका नानो नफका दबा कर, उनके हक को मार कर तुम जुआ खेलते हो, शर्म नहीं आती? अल्लाह के घर से हय्या अला सलाह की आवाजें आ रही होती है, तुम बिस्तर में जुआ खेल रहे हो। तुम्हें कुरान पढ़ना चाहिए था,
تمہیں روزہ رکھنا چاہیے تھا, تمہیں حج کا انتظام کرنا چاہیے تھا. ارے اللہ کے محبوب سے جو محبت کرتا ہے اس کی آنکھیں تو مچلتی ہے اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے, اس کا دل تڑپتا ہے کہ کب مدینہ طیبہ کی حاضری ہوگی, اور تم جوا کھیل رہے ہو. سنو اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام رجس من عمل الشیطان. ایمان والو یہ شراب, یہ جوا, یہ بت پرستی, یہ شیطانی کام ہے. کیا ہے؟ شیطانی کام ہے. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جوا کھیلنے والا جب جوا کھیلتا ہے اور جوا کھیل کر وہ آ جاتا ہے تو وہ آلات جوا, وہ اوزار جوا, وہ جوا کھیلنے کے سامان, چاہے وہ موبائل ہو, چاہے وہ جوا کھیلنے کے پتے ہو, چاہے وہ جوا کھیلنے کا گیم ہو, کرکٹ ہو, لکڑی ڈنڈا, کچھ بھی ہو جس میں تم نے جوا کھیلا ہے, جب تک وہ جوا کھیلنے والے اوزار تمہارے ہاتھ میں رہتے ہیں تب تک تمہارا ایمان سلامت نہیں رہتا ہے. ایمان سلامت نہیں رہتا ہے. جب تم پیدا ہوئے تمہارے باپ نے مسجد کے امام کو بلا کر تمہارے کان میں اذان پڑھوائی تھی, گویا گواہی دی جا رہی تھی کہ ایمان کی دولت تم کو مل گئی ہے. کان میں اذان پڑھوانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حلال ہو جائے بچہ پیدا ہوا. کان میں اذان پڑھوانے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی نشانی ہو جائے کہ اسے ایمان کی دولت مل گئی ہے. اور تم جوا کھیل کر اپنے ایمان کو کھو رہے ہو. جب تک جوے کی حالت میں انسان رہتا ہے اس کا ایمان سلامت نہیں رہتا. کیا سلامت نہیں رہتا؟ بولو تو اونچا. اب اگر اسی وقت موت آ گئی پھر کیسی حالت میں مرو گے؟ رات دن دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ایمان پر موت دینا, اور ایسے کام کر رہے ہیں کہ جس سے ایمان چلا جائے. ایسے کام کر رہے ہیں. اور سنو آگے تم کو بتاتا ہوں, توجہ ہے کہ نہیں؟ اونچا بولو سبحان اللہ. میں نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ اپنی قوم کے اندر سے خرابیوں کو دور کرنا ہے. جتنے لوگ میرے تعلق میں ہیں ان کے اندر سے ان خرابیوں کو دور کرنا ہے. توبہ کر لو. سنو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب جوا کھیلنے والا جوا کھیل کر آتا ہے, کیا کر کے آتا ہے؟ جوا کھیل کر آتا ہے تو اس کے جو ہاتھ ہے جس سے اس نے آلات جوا استعمال کیے ہیں, چاہے وہ گڈی تاش کی ہو, چاہے وہ اوزار ہو, چاہے وہ موبائل میں اس نے جوا کھیلا ہو, میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں جوا کھیلنے والا جب جوا کھیل کر آتا ہے تو اس کے ہاتھ خون میں رنگے ہوتے ہیں, اور وہ خون کسی انسان کا نہیں ہوتا بلکہ اس گندے جانور کا ہوتا ہے کہ جس کا نام لینے سے انسان پرہیز کرتا ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا, مسجد ہے. اس گندے جانور کے خون میں اس کے ہاتھ رنگے ہوتے ہیں جو جوا کھیل کر آتا ہے. کس میں؟ اب نہیں بولو گے آپ. گندے جانور کے خون میں اس کے ہاتھ رنگ گئے جس نے جوا کھیلا ہے. وہ اگر جانور ہمارے کپڑے سے بھی ٹچ ہو جائے تو میں نے مسئلہ بھی بتایا تھا تو ہم سمجھتے ہیں کپڑے ناپاک ہو گئے. وہ جانور اگر گندگی لگا جائے تو ہم سمجھتے ہیں جسم ناپاک ہو گیا. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس نے جوا کھیلا اس کے ہاتھ اس جانور کے خون میں رنگے. کیسے تم نے گوارا کر لیا؟ کیسے گوارا کر لیا؟ اب تم ہاتھ خون میں بھی رگو اور اسی ہاتھ سے صدقہ بھی دو, ہاتھ خون میں بھی رگو اس گندے جانور کے اور اسی ہاتھ سے لوگوں کو کھانا بھی کھلاؤ. یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ توبہ کر لو. وہ پیسہ جو حلال کا تم کما کر لا رہے ہو اور اس کو حرام بنا رہے ہو, اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کاٹ رہے ہو, اپنے بیوی بچوں کا حق مار رہے ہو اور اپنے ہاتھوں کو گندے جانور کے خون میں رنگ رہے ہو. کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ کیا تمہیں رب کی بارگاہ میں حاضری نہیں دے رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر, شراب اور جوا حرام ہی ہے, یہ
शैतानी काम है और तुम कर रहे हो। क्या अल्लाह की हराम की हुई चीजों को तुम हलाल करना चाहते हो? क्या अल्लाह की हलाल की हुई चीजों को तुम हराम करना चाहते हो? जान लो, जिसने अल्लाह की हराम की हुई चीजों को हलाल किया और उसकी हलाल की हुई चीजों को हराम किया, वो हद से बढ़ने वालों में है। और जो हद से बढ़ जाता है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, हद से बढ़ने वाले का ठिकाना जहन्नम होगा। क्या होगा? जहन्नम होगा। तो अपने आप को क्यों जहन्नम का ईंधन बना रहे हो मेरे भाई? समझो मेरी बात। तुम अपने गांव से आए थे, अपने देहात से आए थे, माँ बाप समझते थे मेरा बेटा शहर चला गया तरक्की कर लेगा, मेहनत मजदूरी करेगा, पैसा कमाएगा, अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करेगा, अच्छी तालीम दिलाएगा, उसके बच्चे डॉक्टर बनेंगे, उसके बच्चे इंजीनियर बनेंगे, उसके बच्चे आलिम बनेंगे, उसके बच्चे कौम के रहनुमा बनेंगे। और तुम यहाँ शहर में आकर जुआ खेल रहे हो, अपने काम धंधों के अड्डों पर, अपनी फैक्ट्रियों में लोगों को जुआ खिलवा रहे हो। क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुमसे यही उम्मीदें रखी थी, या तुम अपनी बच्चों की परवरिश इसी तरह कर रहे हो? कौन बाप है जो ये चाहता है मेरा बेटा बड़ा होकर के जुआरी बने? हाँ? कौन माँ है जो ये चाहती है मेरा बेटा बड़ा होकर के शराब नोशी करे, जुआ खेले, अपने हाथों को गंदे जानवर के खून में रंग ले? तो फिर तुम खुद जुआ खेलो और समझो मेरी औलाद पारसा बन जाएगी। हाँ? तुम जुआ खेलो और समझो मेरी औलाद पारसा बन जाएगी, ऐसे कैसे होगा? याद रखो, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मैंने किसी शख्स को नहीं देखा कि जिसने अपने किए का बदला दुनिया में न पा लिया हो। अपने किए का बदला दुनिया में ना पा लिया हो। मैंने एक जुमा में और कहा था, आज फिर कह रहा हूं, तुम शराबी बनोगे तो औलादें बिगड़ जाएंगी, तुम जुआरी बनोगे तो औलादें बिगड़ जाएंगी, तुम अय्याश बनोगे तो औलादें बिगड़ जाएंगी। तुम हलाल कमा कर अपने बच्चों को खिलाओ और रब का शुक्र अदा करो, इंशाअल्लाह तुम्हारा बच्चा कौम का इमाम बन जाएगा। पैसों को ना देखो, ये देखो कि मुझे अपने बच्चों की परवरिश और तरबियत किस तरह करनी है। देखो, जब किसी का बच्चा इमाम बनता है ना, बाप चाहे कौम का राष्ट्रपति क्यों ना बन जाए, प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए, कितने बड़ा ओहदेदार क्यों ना बन जाए, लेकिन बेटा चाहे फटे हुए कपड़ों में ही क्यों ना हो, कौम का जब इमाम बन जाता है ना, तो हालत ये होती है, प्रधानमंत्री आ जाए, राष्ट्रपति आ जाए, कानून मंत्री आ जाए, शिक्षा मंत्री आ जाए, बेटा अगर इमाम है तो बाप यही कहेगा नियत की मैंने पीछे से इमाम के। क्या कहेगा? पीछे से इमाम के। बाप के पास कितनी दौलत क्यों ना हो, बेटा रुकू में है तो बाप को पीछे पीछे रुकू में जाना पड़ेगा। अगर पहले चला गया नमाज ना होगी। सजदे में है बेटा, बाप को बाद में सजदे में जाना पड़ेगा, क्योंकि बेटा इमाम है। और अगर वो पहले चला गया नमाज नहीं होगी। ये औलादों को मर्तबे कहां से मिलेंगे? जब तुम खुद अच्छे बनोगे। तुम समझो मैं जुआरी बना रहा हूं और मेरी औलादें नेक बन जाए, पारसा बन जाए, नमाजी बन जाए, कैसे होगा ये? कैसे होगा? बुजुर्गों का मामूल ये रहा कि चाहे वो भूखे रहे, फाके होते रहे, लिबास पहनने को मिला ना मिला, उन्होंने खून पसीने से कमाई हुई कमाई को, हलाल कमाई को अपने बच्चों को खिलाया, तभी उनके बच्चे पारसा बन गए, तभी उनके बच्चे वली बन गए, तभी उनके बच्चे कौम के इमाम बन गए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? लोग खूब जुआ खेल रहे हैं और समझ रहे हम होशियार हैं, हम अक्लमंद हैं, हम दाना हैं। बेवकूफ हो तुम कि अपनी आखिरत भी खराब कर रहे हो और अपनी दुनिया भी खराब कर रहे हो।
अच्छे लोग तो शराबियों के घर में जाना पसंद नहीं करते, अच्छे लोग तो जुआरियों के घर में जाना पसंद नहीं करते, बल्कि अब से पिछली पीढ़ी का ये मामूल था कि लोग शराबियों के घर में पानी पीना भी पसंद नहीं करते थे, जुआरियों के घर में चारपाई पर बैठना भी लोग पसंद नहीं करते थे। आज दौर बदल गया कि दौर जदीद में लोग दौलतमंद की इज्जत करने लग गए हैं, लेकिन इससे मतलब ये नहीं है कि लोग तुम्हारे डर की, पैसे की वजह से इज्जत कर रहे हैं तो रब के यहाँ तुम्हें इज्जत मिल जाएगी, नहीं, उसके यहाँ दौलत नहीं देखी जाएगी, मकान, दुकान, खेत खलियान नहीं देखे जाएंगे, वहां हर जर्रे का, हर तिनके का हिसाब होकर रहेगा। क्या होकर रहेगा? हिसाब होकर रहेगा। तौबा कर लो, शराब नोशी से बाज आ जाओ। मेरी ये गुफ्तगू आज इसलिए भी है, हालांकि मैं मसाइल ही पर बात करता, इसलिए भी है कि ज्यादातर लोगों ने आज छुट्टी की हुई है, लोग काम धंधे पर नहीं गए हैं, इसलिए कि बाराने रहमत का नुज़ूल हो रहा है, अल्लाह की रहमत बरस रही है, तो लोग काम धंधे पर ना गए हैं। तो मैंने सोचा लोगों तक वो बात पहुंचाई जाए कि शायद उनके दिल में ये बात आ जाए, उमंग जाग उठे कि हमें तौबा कर लेनी चाहिए। अब मुझे सच बताओ, कौन कौन है जो अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहता है, नेक बनाना चाहता है? हाथ उठाकर बताओ। उठाओ हाथ। नहीं चाहते सारे लोग? हैं, चाहते हैं ना? तो क्या तुम बुरे बने रहो, औलाद नेक बन जाएगी? तौबा करोगे कि नहीं करोगे? है, तौबा करोगे? जो जुआ खेलता है वो भी तौबा कर ले, जो शराब पीता है वो भी तौबा कर ले, और जो मक्कारी करता है, चोरी करता है, वो भी तौबा कर ले। और पढ़ो मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्मिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा। बहुत सारे भाइयों को कलमा शरीफ भी पढ़ना नहीं आता, वो इल्लिल्लाह इल्लिल्लाह कहते हैं। पढ़ो मेरे साथ तो इंशाअल्लाह दुरुस्त हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपने अल्लाह के घर में तौबा कर ली है, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी तौबा को कबूल फरमा लेगा। वो गफूर रहीम है, मेहरबान है, अपने बंदों पर रहीम है, करीम है, सत्तार है, गफ्फार है। और तौबा की है तो मेरे भाई, तौबा उसको कहते हैं जो आइंदा गलत काम ना किया जाए। शराब से तौबा उसको कहते हैं कि आइंदा शराब ना पी जाए। जुए से तौबा उसको कहते हैं कि आइंदा जुआ ना खेला जाए। देखो, तुम शराब पी लो, चाहे जुआ खेल लो, एक दिन जब जवानी ढलेगी, बुढ़ापा आएगा, तो कहोगे हाय मक्कारी में जवानी गुजर गई, हाय अय्याशी में जवानी गुजर गई। और जब मौत सामने नजर आने लगेगी, जब ऐसा लगेगा कि अब तो हम खाम में जी रहे हैं, अब तो मर जाते तो बेहतर होता, तब पछतावा होगा कि हमारे पास तो कुछ भी नेकियां नहीं है, हमारे पास तो कोई अच्छा अमल नहीं है, हम मर जाएंगे तो रब की बारगाह में क्या मुंह लेकर के जाएंगे।